ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਗਾਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? मुझे हिंदी बोलना आ गया ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਮੁਝੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਬਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਵੀ ਨੱਚਦੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ ਪਰ ਉਹਦੀ ਬੀਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਮਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਯੈਸ ਸਰ। ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹਦੇ ਪਿਛਲਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਵੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 2 ਬਣਾਓ ਤੇ ਸੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਦੇ 2 ਬਣਾਏ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2 ਤੇ ਸੌਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ। ਔਰ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕੋਈ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ। ਸਰੰਗੀ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ, ਭੂੰ 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 ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਰੰਗੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਤੇ ਫੇਰ ਭੌਂਕਦੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰੰਗੀ ਦੀ ਸੁਰ ਕੱਢੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਭੌਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੂੰ ਕਰਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੌਂਕਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਰੰਗੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜਦੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਰੰਗੀ ਵੱਜਣੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯੈਸ ਸਰ। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी क्या होता है, जब हम घर से निकलते हैं तो सरंगी बजना शुरू होती है तो कुत्ते भौंकते हैं। किहड़े काम च पै गया? चंगा भला फोटोग्राफर ही, चंगी भली नौकरी करदा सी, आह किहड़े काम होए? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਇਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦਾ, ਫੇਰ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਕੁੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਲਾਨ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਖੁਦ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। अब सफलता की राह पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं यूज ऑफ टाइम की, कि हमारी जिंदगी का जो टाइम है वो किस तरह से यूज होता है। एक होता वेस्ट, एक होता ट्रेड और एक होता है इन्वेस्ट। और हर किसी के पास सिर्फ और सिर्फ 24 आवर है। एक बाहर रोड पे जो झाड़ू लगा रहा है उसके पास भी 24 आवर है,
अमिताभ बच्चन के पास भी 24 आवर है, बिल गेट्स के पास भी 24 आवर है। अब फर्क इतना है, ये भी अपने वक्त का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी अपने वक्त का इस्तेमाल कर रहे हैं। वेस्ट करने वाले लोग वो हैं जो ऐसे झुंड बना करके रील्स देख रहे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या मैसेज इधर उधर कर रहे हैं। ये क्या इनको कुछ मिल सकता है? इनको कुछ नहीं। ये किसी ना किसी के फॉलोअर हैं। वही उसने बड़ा अच्छा गाया, उसने बड़ी अच्छी एक्टिंग की, उसकी लड़की भाग गई, उसका लड़का भाग गया, ये इन बातों में लगे हैं। और एक होता है टाइम को ट्रेड करना, कि जो आपने स्टडी की आज तक, जो भी पढ़ाई की, उसकी कोई वैल्यू लगाई गई कि आप मेरे पास इतने घंटे काम करोगे तो आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 आपकी क्वालिफिकेशन के पे डिपेंड करती है कि आपने उनको कितने घंटे देने हैं और कितने आपको पैसे मिलेंगे। और तीसरी है टाइम को इन्वेस्ट करना। ये वो है जो अपनी वैल्यू खुद समझते हैं कि मुझे जिंदगी में कितना चाहिए, मुझे कमाना कितना है। क्या जो मैं पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से कर रहा हूं वही अगले 15-20 साल करता रहूं तो क्या मैं अच्छी कार ले पाऊंगा? क्या मैं अपने खर्चे चला पाऊंगा? क्या मेरे ड्रीम पूरे होंगे? क्या मैं क्रूज पे जा पाऊंगा? क्या मैं वर्ल्ड टूर लगा पाऊंगा? क्योंकि ये तो उनके लिए है जिनके सपने बड़े हैं कि मुझे यार गाड़ी में जाना, अपनी कार होनी चाहिए, मेरा अच्छा अपना घर होना चाहिए, मुझे फॉरेन घूमना है। ये उनके लिए है। और उनको ये भी क्लियर है कि सपने अगर मेरा बड़ा घर बनाना है, बैंक बैलेंस रखना है, अच्छी गाड़ी लेना है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना है, बच्चों की शादी अच्छी इन्वेस्टमेंट करके करना है, तो वो नौकरी या दुकान से नहीं हो सकती। उसके लिए हमें एक बहुत बड़े नेटवर्क बनाने की जरूरत है। और जब हम नेटवर्क बनाते हैं उस वक्त कुछ लोग समझते हैं कि मेरा खर्चा, और कुछ लोग उस खर्चे को समझते हैं इन्वेस्टमेंट। रिलायंस जब लॉन्च हुआ था उससे पहले तो मेरा ख्याल लोग मोबाइल को यूज करने से भी डरते थे, क्योंकि सुनने के भी पैसे पड़ते थे और करने के भी पैसे पड़ते थे। रिलायंस आया, जब रिलायंस आया मोची के पास, दर्जी के पास, रिक्शा वाले के पास, सबके पास मोबाइल आ गया। जरा 100-100 रुपए में मोबाइल बांट दिए। लोगों ने सोचा रिलायंस पागल हो गई है, कितना लोगों को फ्री में दे दिया। रिलायंस पागल नहीं हुआ, उसने लोगों को आदत डाल दी कि अब इसके बिना नहीं रहना। जितना भी टेलीकम्युनिकेशन में था अपना, कितने भी थे, सबको सस्ता करना पड़ा अपने पैकेज को। शुरू में घरों में एंटीने वाले होते थे, टीवी एंटीना घुमाओ, पाकिस्तान लगा लो, जलंधर लगा लो, दिल्ली लगा लो, एक बंदा तो छत पे ही रहता था। उसके बाद केबल टीवी आया। मेरे कजन ने भी केबल शुरू किया था, क्योंकि हम लोग उसको पागलपन समझते थे। ये कौन सा काम है, घर घर तारे लगाओ। पर वो तार बिछाने में हो सकता है 6 महीने लग गए, पर जब घर घर के अंदर तार चली गई ना, तो जो बंदा 2 चैनल देखता था वो उसको आप 20-25 चैनल देखने की आदत पड़ गई, क्योंकि उन्होंने फैसिलिटी दे दी 100 चैनल देखो आप, 100 रुपए में, 200 में, 300 में। तो अब उसने बनाया नेटवर्क, एक बार तार, पैसे बार बार। लोगों ने सोचा खर्चा कर दिया, 10 लाख रुपया लगा दिया, 50 लगा दिया, इतना लगा दिया, पर उसने किया था इन्वेस्ट। वो एक बार इन्वेस्ट करके हर महीने 50,000 कमा रहा है। उसी तरह हम उस कैटेगरी में, हम में से कुछ लोग आते हैं जिनके पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लगाने के लिए नहीं है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है कि हम नेटवर्क बना लें लोगों का, जो फ्री में मिलते हैं। आज एक रिक्शा वालों को पूछो अमीर होना चाहता है क्या, बोलेगा नहीं चाहता। वो भी चाहता है। एक सब्जी वाला भी अमीर होना चाहता है, दूध वाला भी चाहता है, मोची भी चाहता है, दर्जी भी चाहता है। इनको सिर्फ क्लियर करने की जरूरत है, जो तू काम पिछले 50 साल से करते जा रहे हैं, खानदानी काम है, इससे अगर आपका खानदान आज तक अमीर नहीं हुआ तो आपको लगता है आप हो जाओगे?
क्या ये प्रोफेशन है जो आपको लाख रुपया महीने का देगा? वो कहेगा नहीं। तो क्या तुम्हें चाहिए ऐसा प्रोफेशन जिसमें आप रोज 2 से 2.5 घंटे काम करो और रोज का 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 जितना चाहो कमा सकते हो? तो बंदा क्या जवाब देगा? हाँ यार, ऐसा क्या है? कई लोग कहते हैं रिजल्ट नहीं आते। रिजल्ट आते हैं, हमें बात करना नहीं आती, हमें क्लियर करना नहीं आता कि ये इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं। बहुत सारे लोग तो यहां 300 रुपया खर्च करने की वजह से नहीं आए होंगे। किसी की तो जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, पर कुछ तो यही, बंदा तो मेरे साथ कोई जाएगा नहीं, 300 मुफ्त का खर्चा होगा। अगर हम ये सोचें कि 300 खर्च के 300 करोड़ की नॉलेज लेके जाएंगे तो वो एक इन्वेस्टमेंट है हमारी। खाना बढ़िया था, Yes, sir. हॉल बढ़िया है, Yes, sir. साउंड भी मेरी मर्जी का है, बहुत अच्छा है। Yes, sir. मतलब हर चीज बढ़िया है। यही चीज अगर संदीप महेश्वरी लगा रहा हो तो आपको हो सकता है 2000, 4000, 5000 रुपए का टिकट खरीदना पड़े और खाना भी जेब से ही खाना पड़े। और जितना हम पर्सनली एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो नहीं करेगा। वो पर्सनली अपॉइंटमेंट का भी हो सकता है, कहे 50,000 दे दो फिर तेरे साथ बैठ के बताऊंगा, तो बातें यही बताएंगे जो मैं बताने वाला हूं आपको। अब ये बातें यहां बैठे 30, 40, 50 लोग सुनेंगे, पर जो इंप्लीमेंट करेंगे उनको आज से ही अर्निंग शुरू होगी, गारंटी से कहता हूं। Yes. नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होना। करेंगे तो मैं दावे से कहता हूं आज शाम को ही कहोगे कि सर आज मैंने $50 कमा लिए एक ही दिन की, जो 300 इन्वेस्ट किया था काम आ गया। अब हम इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं? मोर देन 98% पीपल आर नॉट एंजॉयिंग सक्सेसफुल लाइफ। अपने अड़ोस पड़ोस देखो, रिश्तेदारों में देखो, दोस्त मित्रों में देखो, क्या वो अपनी जिंदगी को काट रहे हैं या जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं? मैक्सिमम हम जिंदगी काट रहे हैं, और काटने के लिए कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कट ही जाती है, वो अपने आप कट जाएगी। जिंदगी को जीने के लिए दूसरों से थोड़ा सा हटके डिसीजन लेना पड़ेगा। अब जरा अपने उस टाइम को एनालिसिस करो, कैरियर का, जो स्टार्टिंग कैरियर, पहले 20 साल, क्या हमने जिंदगी के पहले 20 साल कुछ कमाया? क्या लगाया? लगाया ये किस पे? मां बाप ने लगाया कि बच्चे का कैरियर बनेगा, इसकी पढ़ाई अच्छे से अच्छे स्कूल में हो, ट्यूशन अच्छी से अच्छी हो, इसको फैसिलिटीज अच्छी से अच्छी हो। हर पेरेंट चाहता है मैं एक टाइम का खाना कम खा लूंगा पर मेरे बच्चे एजुकेशन अच्छी लें। तो पहले 20 साल, अब एवरेज एज जो है वो 70 से 80 साल है, तो 20 साल तो हमने पढ़ाई में काट दिए। अगले 40 साल, मान वैसे आज कोई ऐसा है, ऐसा लकी है जिसको 20 साल पढ़ाई करने के बाद इंस्टेंटली बाहर निकलते नौकरी मिल गई हो? नहीं मिलती। पर अगर मिल भी जाए तो अगले 40 साल तक हार्डवर्क करना पड़ेगा। 20 और 40, फिर सुबह जाना शाम को आना, सुबह जाना शाम को आना, सुबह जाना शाम को आना। कनाडा, अमेरिका, कहीं भी चले जाते हैं तो भी तो हम अपनी फैमिली से दूर, दोस्तों से दूर, कोई मर गया तो रिप लिख के अफसोस करते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आ नहीं पाते वहां पर। कभी ये नहीं सोचा कि जिंदगी हमें इसलिए मिली थी कि सबसे दूर आ जाएं। 60 साल निकाल दिए हमने हार्डवर्क में, जिया फिर भी नहीं। आफ्टर 60 ईयर, एंड ऑफ लाइफ, क्योंकि उस वक्त बाल उड़ चुके होते हैं, दांत नहीं रहे होते, गाड़ी चलाने के लायक नहीं रहे होते। इस वक्त अगर आपके पास मर्सिडीज भी खड़ी हो और उसको चलाने वाले आप ना हो, बल्कि आपको पे करके ड्राइवर रखना पड़े, तो मर्सिडीज क्या और मारुति 800 क्या, फर्क क्या है फिर उसमें? मजा तो तब है कि 20 साल के बाद जब कैरियर शुरू होता है तो हमारे पास अच्छी सी कार हो, अच्छा सा घर हो, अच्छी सी बीवी हो, अच्छे से बच्चे हो, अच्छा सा फ्रेंड सर्कल हो, अच्छी सोसाइटी हो, जो जी करे खाएं, जो चीज जहां जी करें जाएं, जहां जब जी करे सोए हुए उठें, जब जी नींद आए तो सो जाएं, टाइम के पाबंद ना हो, उसको जिंदगी कहते हैं। पर वो जिंदगी जीने के लिए
हम हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, खुद का फैसला नहीं लेते कि वो मेरा मेंबर नहीं बना सर, मैं नहीं करूंगा। अरे वो करोड़पति नहीं बनना चाहता तो आप भी नहीं बनोगे। ये जो हार्डवर्क के बाद नो टाइम टू एंजॉय, नो मनी फॉर लग्जरियस लाइफ और नो मनी सिक्योरिटी फॉर फैमिली। एक बंदा जो दिन रात मेहनत कर रहा होता है और आज ही राम राम सत्य हो जाए तो उसका परिवार मुश्किल में आ जाता है। आज एक इंसान जो पूरे घर की जिस पर जिम्मेवारी है, रात को 1-1:30 बजे जब सब सो रहे हों और अपने परिवार में से उठ करके अपने गेट के पास चला जाए और फिर उस परिवार को देखे सोए हुए कि ये कितने निश्चिंत होकर सोए हुए हैं, क्योंकि इनके ऊपर कमाने वाला है। अगर ये कदम वापस उस परिवार तक ना पहुंच पाए तो जरा सोच के देखिए उस परिवार की हालत क्या हो। और जिसकी वजह से वो परिवार चल रहा है, क्या उसने आगे का कुछ सोचा? नहीं। एक राजा की कहानी सुना रहा हूं। एक राजा था, उसके यहां मैक्सिमम उसका जो स्टाफ था वो बहुत समझदार था, सबसे कोई ऐसा नहीं था, एकदम एक्यूरेट। राजा ने कहा कि यार समझदार तो बहुत है, एक पागल ढूंढ के लाओ, मेरे दरबार में एक पागल भी चाहिए। तो मंत्रियों ने पूछा वो क्यों? कहते यार कभी तो समझदारी के अलावा हंसी मजाक वाली चीजें भी चाहिए, और वो एक पागल ही कर सकता है। तो वो मजाकिया टाइप कोई बंदा हो ना तो थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाया करेगा। तो बहुत ढूंढने के बाद एक पागल ढूंढ ही लिया, जिसकी हर बात बेसिर पांव होती थी। अब जब भी कभी उनका मूड होना, पागल से सवाल करने शुरू कर देने और सबने हंसना उसके जवाबों पर, सबने उस पे हंसना। अब एक दिन क्या हुआ, राजा बीमार पड़ गया। राजा की तैयारी थी ऊपर जाने की, तो राजा ने सोचा कि यार जाना तो है, ऐसी टेंशन लेके क्यों जाना, पागल को बुलाते हैं, वो कोई बात उससे बात करेंगे, वो कुछ मजाकिया करेगा तो मेरा भी मन थोड़ा सा ना हंसी खुशी से जाऊंगा दुनिया से। तो राजा ने उसका स्वागत किया, उसके कक्ष में वो आया तो उसने पागल ने कहा, राजा ने कहा मैंने तुमसे कुछ पूछना। कहता सारी उम्र मेरे से पूछा, आज मैंने तुमसे कुछ पूछना है। कहता हाँ पूछो, क्यों नहीं। कहते राजा आप बेड पे क्यों पड़े हो? कहता मैं जाने वाला हूं। कहता आप कहां जाने वाले हो? कहता मैं ना भगवान के पास जाने वाला हूं। तो कहता वापस कब आओगे? कहता वापस तो अब मैं वहीं रहूंगा। कहते वहां रहने के लिए आपने आज तक क्या बंदोबस्त कर रखा है? आपने यहां पर 60, 70, 80 साल रहना था तो आपने इतने महल बनाए थे, इतने मंत्री रखे थे, इतने खजाने भरे हुए थे, घोड़े थे, रथे थी, सारा कुछ था, सेना थी। वहां के लिए तुम्हारे पास क्या है? राजा हैरान कि यार पागल। कहता मैंने कुछ नहीं, वहां के लिए तो कोई बंदोबस्त नहीं। कहता फिर पागल मैं नहीं तुम हो। यहां पर रहना ही नहीं था, वहां के लिए इतने बंदोबस्त, और यहां आगे वापस ही नहीं आना, वहां के लिए कुछ भी नहीं। तो ये इंडस्ट्री वो है जो हमें वहां के लिए भी इंतजाम करके देती है, क्योंकि जब आपका नेटवर्क इतना होता है, हर कोई काम करता है, वो समय होता है जब आप भगवान का अच्छे से नाम ले सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। वरना जिंदगी भर एक दुकानदार के पास टाइम नहीं, एक फैक्ट्री वाले के टाइम नहीं पास होता, एक जॉब वाले के पास टाइम नहीं होता, पर एक नेटवर्कर अगर 2 से 3 साल डट के मेहनत करके 100-150 करोड़ रुपया कमा ले कि अब मुझे टेंशन नहीं, अब वो कहेगा कि अब मैं गुरुद्वारा साहब जाऊंगा, अब मैं मंदिर जाऊंगा, अब मैं मस्जिद जाऊंगा, जहां दिल करता है, जहां 4 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन रहना चाहता है रह सकता है। नहीं तो बंदे को टेंशन ही रहती है कि मत्था टेकने भी टाइम देख के जाता है, इतने बजे वापस भी घर पहुंचना। भीड़ होगी तो कहना दूर से भगवान जी टाइम नहीं है, ओके, उसके लिए भी टाइम चाहिए।
तो किसी भी काम में सबसे पहले हमारा खुद का विजन क्लियर होना चाहिए। कई लोग कहते हैं सर काम नहीं चलता, लोग नहीं मानते, लोगों का विजन क्लियर नहीं है। मैं ये कहता हूं लोगों का विजन क्लियर ही है ऑलरेडी, अपना क्लियर नहीं है। अपना जिसका क्लियर हो गया ना, आज हरमीत जी का विजन क्लियर है। हरमीत जी के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई कि टूर पे जाकर के जो ही वापस आए आके मदर एक्सपायर हो गए। पर ये एक कमिटमेंट अपनी टीम के साथ, अपने सीनियर्स के साथ कर चुके थे कि मुझे ये इवेंट बोला हुआ है तो लगाना, उसके लिए लगातार इन्होंने लगे रहे। क्योंकि क्लियर है जो चला गया उसको मैं वापस तो नहीं ला सकता, उसके लिए अफसोस तो है, पर जिनके साथ कमिटमेंट की हुई है उनका क्या दोष। खुद के साथ कमिटमेंट की है, खुद का क्या दोष। जो दुनिया में चलना है वो चलता रहेगा, पर जो अपनी ड्यूटीज है उनको टाइम पे करें हम। और देखिए समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। समय के साथ चलिए और सफल रहिए। आज से 5-10 साल पहले ऐसी कोई जगह नहीं होती थी जहां पीसीओ ना हो। फिर हर एक की जेब में मोबाइल आ गया तो पीसीओ बंद हो गए। फिर उन सब पीसीओ वालों ने फोन रिचार्ज बेचना शुरू कर दिया। अब रिचार्ज भी ऑनलाइन होना शुरू हो गया। कभी ध्यान दिया आजकल बाजार में हर तीसरी दुकान मोबाइल फोन की है। सेल, सर्विस, रिचार्ज, एक्सेसरी, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सब। और अब सब कुछ पेटीएम से हो जाता है। और जो लोग रेल का टिकट भी अपने फोन से ही बुक करवाने लगे हैं। अब पैसे का लेन देन भी बदल रहा है। करेंसी नोट की जगह पहले प्लास्टिक मनी ने ली थी और अब डिजिटल हो गया है। इतनी तेजी से समय बदल रहा है। समय के साथ चलिए, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आंख कान नाक खुले रखिए वरना हम पीछे छूट जाएंगे। आपको याद होगा 1998 में कोडक, मैं फोटोग्राफर रहा हूं तो इसलिए मुझे याद है कि कोडक जो कंपनी थी जो फोटो पेपर बनाती थी, इसमें 1,70,000 कर्मचारी काम करते थे और वो दुनिया का 85% फोटो पेपर बेचते थे। चंद सालों में ही डिजिटल फोटोग्राफी ने उनको बाजार से बाहर कर दिया और कोडक दिवालिया हो गई और उनके सारे के सारे जो एम्प्लॉय थे वो रोड पे आ गए। तो ये सब पढ़े लिखे थे, अच्छी सैलरी पे थे और एकदम सैलरियां बंद हो गई। आपको अंदाजा है आने वाले 10 सालों में दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी और आज चलने वाले 70 से 90% उद्योग बंद हो जाएंगे। चौथी औद्योगिक क्रांति में आपका स्वागत है। उबर, सुना उबर? उबर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, उनकी अपनी खुद की एक भी कार नहीं है। इसके बावजूद वो दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है। एयरबीएनबी दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है, जबकि उनके पास अपना एक भी होटल नहीं है। हम लोग सोचते हैं होटल कैसे खोलेंगे, ओयो ने कौन सा अपना खोला, गो एबीबो ने कौन सा खोला, रेल टिकट भी करता है, एयर टिकट भी करता है, होटल भी बुक करता है। तो ये हमें थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। हाँ, 2025 तक ड्राइवरलेस कार सड़कों पर उतरने लगेंगी और 2025 तक ये अकेला आविष्कार पूरी दुनिया को बदलने की शुरुआत कर देगा। क्योंकि आज से अगर 10 साल पहले कोई अगर ये बात कहता ना तो हम उसका भी मजाक उड़ाते, साला बिना ड्राइवर के कार कैसे चलेगी। और आज आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं कि ड्राइवरलेस कारें चलना शुरू हो चुकी हैं। अगले 10 सालों में दुनिया भर की सड़कों से 90% कार गायब हो जाएंगी। जो बचेंगी वो तो या तो वो इलेक्ट्रिक कार होंगी या फिर हाइब्रिड। सड़कें खाली होंगी, पेट्रोल की खपत 90% कम हो जाएगी। सारे अरब देश दिवालिया हो जाएंगे। अरब देश तेल पे ही है और जब कारों में तेल डलना ही नहीं तो तेल मंगवाएगा कौन। आप उबर जैसे सॉफ्टवेयर से कार मंगवाएंगे और कुछ ही क्षणों में एक ड्राइवरलेस कार आपके दरवाजे में खड़ी होगी। उसे यदि आप किसी के साथ शेयर कर लेंगे तो राइड आपकी बाइक से भी सस्ती होगी। कार के ड्राइवरलेस होने के कारण 99% एक्सीडेंट्स होने बंद हो जाएंगे। इससे कार इंश्योरेंस नामक धंधा भी बंद हो जाएगा। ड्राइवर जैसा कोई रोजगार धरती पे नहीं बचेगा।
जब शहरों और सड़कों से 90% कार गायब हो जाएंगी तो ट्रैफिक और पार्किंग जैसी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि एक कार आज की 20 कार 20 कार के 20 कार के बराबर होंगी। HMT घड़ी नाम सुना आपने? Yes, sir. एक समय ब्रांड था HMT घड़ी। बजाज स्कूटर, डायनोरा टीवी, मर्फी रेडियो, नोकिया मोबाइल, राजदूत बाइक, एम्बेसडर कार, सब गायब। एक समय ये ब्रांड थे और इनके मालिकों ने उस वक्त ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि हमारा वजूद ही खत्म होने वाला है। इन सब की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी, फिर भी बाजार से बाहर हो गए, कारण समय के साथ बदलाव नहीं किया। इसलिए व्यक्ति को समय अनुसार अपने व्यापार एवं अपने स्वभाव में बदलाव करते रहना चाहिए, जिसको कहते हैं अपडेट एंड अपग्रेड टाइम टू टाइम। तो अब मैं बात करता हूं, किसी भी काम में ज्वाइनिंग ही काफी नहीं होती। क्या हम सोचे मैं ज्वाइन हो गया, अब मेरा हक बनता है कि मेरे अकाउंट में 100 करोड़ आ जाए। ज्वाइनिंग तो आप किसी की भी डलवा सकते हो। फैसला 100 करोड़ कमाने का किसने लिया है, यह तय करता है आगे कि मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, कि मैं इसको अपना बिजनेस समझ के करना चाहता हूं, या मैं किसी एक कंपनी का मेंबर समझ के काम कर रहा हूं। माइंड सेट बिफोर स्टार्टिंग, पहले अपना माइंड सेट करना है स्टार्टिंग से पहले, कि एक तो वो होंगे जैसे रिवॉल्विंग डोर नहीं होता, ऐसे गए और ऐसे घूम के वापस अपने काम में फिर लग गए, जो काम हम ऑलरेडी करते हैं। रिंग बंद कर दो ना। और मार्केट के बारे में पहले ही माइंड सेट हो, ये नहीं कि प्लान देखा और हमें लगा मैं तो 500 बंदा एक ही दिन में ज्वाइन करवा दूंगा, और 5 बंदों से मिले तो उन्होंने जैसे ये गुब्बारे में एक सुई लगे ना, वो ऐसे लटक जाएगा। उसी तरह एक्साइटेड होके हम ज्वाइनिंग तो कर लेते, इतनी तो मैं ऐसे ही कर दूंगा। वो 2-4 लोगों से मिलता है, वो ऐसे गुब्बारे में सुई डालता है, दोबारा ये खुद दर्शन ही नहीं देता, फोन ही नहीं उठाता। लोग तो मानते ही नहीं, ये काम थोड़ी चलते हैं। कारण वो लोग नहीं, कारण खुद का फैसला है। क्या मेरी जिंदगी का फैसला 2-4 लोग करेंगे, या मैं अपना फैसला खुद लेने वाला हूं?